Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to the Prime Skills once again. So, first of all, if you have not subscribed the channel yet, make sure that you subscribe the channel and hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications of all the videos which I have been posting or which I will be posting on the same channel, which are related to your personality development, your communication skills, your vocabulary development, your spoken English. It means that if you really want to establish yourself as a good communicator, or if you really want to speak English in a confident way, this channel is actually going to provide you a lot many resources. So make sure that you are connected to us in a very proper way and you keep on getting the notifications for every single video. For that, subscribe and hit the bell icon. Also, this is our 7th session, and in the 7th session we are going to discuss about the types of listening. So make sure that you have actually completed and watched all the previous sessions in order to understand the concept really well. And apart from that, if there is any issue or any suggestion which you would like to give to me, make sure that you are connected to the WhatsApp and the Telegram channel. And apart from that, you can also connect with me through the comment box. Okay, so without much ado, let's go ahead and let's discuss today's topic. So our today's session is all about types of listening. Today we would be talking about a lot of listening methods, right? हमने जो अभी तक डिस्कशन किया था वो हम एक्टिव लिसनिंग के बारे में बात कर रहे थे, बट एक्टिव लिसनिंग के अलावा भी और भी कई सारी तरह की लिसनिंग होती हैं, या फिर एक्टिव लिसनिंग को भी कई तरह की लिसनिंग्स में डिवाइड किया जा सकता है. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट a lot many different types of listening. So this is the lecture 7. Apart from this, earlier we have already covered lecture up to lecture 6. मेक श्योर कि आप वो सारी वीडियोस को जरूर देखें जिससे कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. वंस अगेन, दिस इज द BAS 105-205 सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स है AKTU फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, एंड दिस इज द न्यू सिलेबस व्हिच वाज जस्ट रिलीज्ड इन नवंबर 2022. सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट डिस्कसिंग आवर टॉपिक फॉर टुडे. So the topic is the types of listening, which is a part of your syllabus. Now we are moving forward with it. So types of listening में अगर हम देखें बच्चों, तो हम यहाँ पे अपनी listening को एक तरीके से 9 types में divide कर सकते हैं. So there are 9 types of listening. Okay, so what are the 9 types of listening? Number 1 is the informational listening, then discriminative listening, biased listening, sympathetic listening, comprehensive listening, empathetic or therapeutic listening, critical listening, relational listening and appreciative listening. ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जिससे कि आप इनके बारे में प्रॉपर तरीके से समझ जाएं और हर तरह की लिसनिंग को आप अच्छे तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर पाएं, और उसके बारे में आप किसी से बात करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं. मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज यू विल फाइंड आउट दैट ऑल ऑफ दीज लिसनिंग are actually going to play a huge role in your day-to-day communication. हर जगह पे आपको different listenings का यूज करना पड़ता है, different listening स्टाइल का यूज करना पड़ता है. तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें और प्रॉपर तरीके से इसको समझें. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड और एक एक करके अब हम इनका डिस्कशन करना शुरू करते हैं. So our first listening, my dear students, is informational listening. जैसा कि आपको नाम से क्लियर है, informational का मतलब क्या होता है कि जहां पे आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो वो आपकी informational listening की कैटेगरी में आती है. So when we want to learn something, we use this informational listening to understand and retain information. जब हम कभी कोई चीज लर्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं या इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हमारी informational listening आती है. It usually takes a high level of concentration to perform this type of listening. इस तरह की listening के लिए high level of concentration की requirement होती है. That's because you need to be highly engaged to understand a new concept. अब मान लीजिए आप एक मैथमेटिक्स की क्लास में हैं और वहां पे आपको डोमेन और रेंज पढ़ाया जा रहा है या फिर कैलकुलस का कोई डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा है. You will have to be very much engaged and very much active in order to understand that topic, right? Although you are getting the information, but you will have to be very much focused. That's why this is called the informational listening. You also need to apply critical thinking to what you are learning. जब आप कोई एक नई चीज लर्न करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है जिससे कि आप चीजों को आसानी से रिलेट कर पाए अपनी प्रीवियस लर्निंग के साथ. तो क्रिटिकल थिंकिंग जो इंपॉर्टेंट होती है आपकी इस तरह की इंफॉर्मेशन लिसनिंग में. दिस इज सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर लर्निंग विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. यानी जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसके कॉन्टेक्स्ट में जो आप नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आप उसको रिलेट कर पाए, उसके लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है,
Informational listening is a type of goal-based listening that requires the listener to interpret verbal and non-verbal cues to learn. Listening के अंदर आप ये verbal और non-verbal बहुत जगह पे पढ़ेंगे. Listening के अंदर verbal और non-verbal दोनों cues को देखना या दोनों चीजों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि listening अपने आप में hearing से बहुत डिफरेंट होती है. Hearing के लिए आपको केवल verbal मैसेज चाहिए होता है, बट listening के लिए आपको comprehension चाहिए होता है. comprehension के लिए आपको non-verbal cues यानी non-verbal लैंग्वेज या फिर बॉडी लैंग्वेज को आपको अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है. ठीक है. द लिसनर टिपिकली इज अ लेस एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लिसनिंग प्रोसेस. यहां पे एक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, आपका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि यहां पे केवल एक ही बंदा जनरली बोल रहा होता है, विच इज द स्पीकर. जैसे कि अगर आप एक क्लास में हैं तो मैक्सिमम जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि एक टीचर ही सारा कुछ बोल रहा होता है, स्टूडेंट्स केवल नोट ले रहे होते हैं या फिर वो सुन रहे होते हैं. तो वहां पे वो इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग की कैटेगरी में आ जाता है. One non-verbal signal that someone is in informational listening mode is that they are taking note. अगर आपको ये समझना है कि कौन इसमें बेसिकली इंफॉर्मेशनल लिसनिंग में है या नहीं है, तो आप उस व्यक्ति को देखिए जो व्यक्ति नोट ले रहा है या नोट टेकिंग कर रहा है. अगर कोई कुछ बोल रहा है, कुछ लोगों की आदत होती है वो हमेशा नोट्स बनाते हैं, राइट. चाहे वो कैसा भी लेक्चर हो, चाहे वो थ्योरेटिकल लेक्चर हो, प्रैक्टिकल लेक्चर हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लेक्चर हो, वो हमेशा नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं. ऐसे लोग हमेशा इंफॉर्मेशनल लिसनिंग को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे होते हैं एंड दे वांट टू मेक श्योर कि वो कोई पॉइंट छोड़ ना दें. ठीक है. दिस फॉर्म ऑफ लिसनिंग टू द लिसनर फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर्स मैसेज, पोस्टपोनिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रोसेसिंग अंटिल लेटर. यानी यहां पे जो मेजर फोकस होता है बच्चों, वो मेजर फोकस होता है कि आप जो स्पीकर बोल रहा है उसको अच्छे तरीके से समझें. जब आप नोट ले रहे हैं वहां पे आप डिफरेंट सिंबल्स या डिफरेंट पॉइंट्स का यूज करते हैं, जिससे कि आप उसमें लिख सकते हैं कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग जो है इसके बारे में मैं बाद में रिसर्च करूंगा या बाद में इस चीज के बारे में सोचूंगा, इस चीज को और ज्यादा एलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा. बट फोकस आपका होता है कि सामने जो स्पीकर बोल रहा है उसकी बातों को आप अच्छे तरीके से समझ पाए. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशनल लिसनिंग. In the corporate environment, this type of listening is often used while listening to the reports, briefing and speeches. जब भी कभी आप ऑफिशियल एनवायरनमेंट में होंगे, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होंगे, वहां पे आपकी जो मीटिंग्स होंगी, आपकी ब्रीफिंग्स जो होंगी, आपकी रिपोर्ट डिस्कशंस जो होंगे, वो सब इंफॉर्मेशनल लिसनिंग की फॉर्म में आते हैं. Some examples of informational listening include work training. जब आप वर्क ट्रेनिंग ले रहे हैं वर्क के लिए, self-paced learning at home or at work, listening to an educational ebook, coaching. All these sort of listening actually require the type of, or you can say the concept or the fundamentals of informational listening. So make sure you understand the concept of informational listening. If I'm not wrong, and if you are taking the notes right now while listening to me, you are also being an informational listener, okay? Because you are getting new information. Now, number 2 is the discriminative listening. Discrimination का मतलब होता है दो चीजों में डिस्क्रिमिनेट करना या उनके बीच में डिफरेंस करना, राइट? तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का मतलब ये यहाँ पे आप कंपैरिजन करते हैं इंफॉर्मेशन का. ठीक है. आइए देखते हैं जरा इसमें क्या होता है. डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग इज व्हेन द लिसनर इंटरप्रेट्स एंड असाइन मीनिंग टू द साउंड रादर देन टू द वर्ड. यानी यहां पे जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति, देखिए बोलने के, जब हम बोलते हैं किसी से बात करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के दो पार्ट होते हैं. पहला पार्ट द वर्ड, यानी जो आप कंटेंट यूज कर रहे हैं, एंड दूसरा पार्ट द मेटा कम्युनिकेशन, कि उस कंटेंट को डिलीवर करने का तरीका क्या है. मेटा कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? मेटा कम्युनिकेशन में आपका आता है टोन, आपकी पिच, आपका पॉज, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका इंटोनेशन, आपका स्पीकिंग पैटर्न. ये सब चीजें मेटा कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं. और ये चीजें काफी हद तक व्यक्ति के टेम्परामेंट, व्यक्ति के मूड और व्यक्ति के बात करने के तरीके और उसके पीछे की इंटेंट को जाहिर करते हैं. तो अगर केवल आप वर्ड्स को सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, आप केवल वर्ड्स का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे. लेकिन अगर आप मेटा कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देंगे तो व्यक्ति की इंटेंशन, उसके मूड, उसके टेम्परामेंट, उन सब चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. और यहीं पे डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग आ जाती है. तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में व्यक्ति केवल वर्ड्स पे फोकस नहीं करता, वो वर्ड्स के डिलीवरी के तरीके या फिर साउंड के ऊपर फोकस करता है कि उन वर्ड्स को बोला किस तरीके से जा रहा है. Discriminative listening is when you look past the words you hear to detect the underlying message. यानी जब कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है तो उसके दो मीनिंग होते हैं. एक मीनिंग वो जो वो डिलीवर कर रहा है, और एक मीनिंग वो जो उन वर्ड्स के पीछे छिपा हुआ है. उस इंटेंट को समझना ही डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग के पार्ट में आता है. ठीक है. अब जैसे आपने किसी से पूछा कि क्या आप खुश हो, अगर वो व्यक्ति अंदर से दुखी भी है तो भी वो आपसे बोलेगा यस आई एम हैप्पी. लेकिन आपको समझना है उसके बोलने के तरीके से, उसके एनर्जी लेवल से, उसके एंथुसियाज्म लेवल से कि क्या वो सच में खुश है या नहीं है, राइट? तो ये कहलाती है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग. In discriminative listening, the listener interprets the difference and nuances of sound and body language. यहां पे sound यानी बोलने का तरीका, शब्दों को जाहिर करने का तरीका, मैसेज को जाहिर करने का तरीका, और साथ में जो बॉडी लैंग्वेज है वो दोनों बहुत ज्यादा मैटर करते हैं.
The listener is sensitive to the attributes including rate, volume, pitch and emphasis in speaking. मैंने आपको बताया मेटा कम्युनिकेशन के जो भी एट्रीब्यूट होते हैं उनके प्रति आपको सजग होना या उनके प्रति आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड होना जरूरी है, जिससे कि आप एक एक्चुअल मैसेज को या सही मैसेज को पकड़ पाएं. Discriminative listening is the most basic type of listening whereby the difference between different sound is identified. This is a very basic type of listening, है ना. ये जब छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो अपनी मदर या अपने पेरेंट्स या किसी भी व्यक्ति की लिसनिंग में डिफरेंशिएट करने के लिए इसी लिसनिंग का यूज करते हैं. भाई उनको नहीं पता कि आप लैंग्वेज में उनसे क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपके जब आप बहुत तेजी से बोल रहे होते हैं या आप मुंह बना के बोल रहे होते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि अब आप गुस्सा कर रहे हैं. जब आप हंस के बोल रहे होते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि अब आप खुश हैं और नाउ दे कैन डिमांड समथिंग. तो वहां पे बच्चे जो होते हैं वो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का ही यूज करते हैं, इसी वजह से वो सारी चीजों को समझ पाते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग. Discriminative listening is how babies understand the intention of a phrase before they can understand words. उन्हें तो नहीं पता कि आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं उनका मतलब क्या है, लेकिन उसके पीछे के इंटेंशन को वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं. If someone speaks to them in a happy and amused tone of voice, they'll smile and laugh back. Right? Very clear. If you cannot hear difference, then you cannot make sense of the meaning that is expressed by such differences. अगर आप सामने वाले व्यक्ति की बातों में, यानी जो उसने बात हंसी खुशी में की है और जो उसने बात गम में की है, अगर उनमें इंटेंशन में डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे हैं, then it becomes really difficult for you to practice this discriminative listening. But this is very important listening, guys. We learn to discriminate between sounds within our own language early, and later we are unable to discriminate between the phonemes of the other language. Phonemes क्या होते हैं? बेसिकली जो आपकी कोई भी लैंग्वेज होती है उसका एक टेक्निकल टर्म कहलाता है फोनीम. फोनीम बेसिकली छोटी सबसे छोटी साउंड जो होती है उसको फोनीम्स बोला जाता है. हमारी जो मदर लैंग्वेज, जो मदर टंग जो होती है, उसको हम आसानी से इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि हम उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं. तो लैंग्वेज के न्यूएंसेस को समझना या फिर साउंड के डिफरेंसेस को समझना हमारे लिए आसान होता है. लेकिन जब हम कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें प्रॉब्लम क्यों आती है? हमारा इंटेंशन जो है उसको जाहिर करने की जो कला होती है, जो आर्ट होती है, जो मेटा कम्युनिकेशन होता है, हम वर्ड्स को सीखने पे तो ध्यान देते हैं लेकिन मेटा कम्युनिकेशन सीखने पे कभी ध्यान नहीं देते. और यहीं पे कम्युनिकेशन स्किल्स में डिफरेंस आता है. लोगों को लगता है कि इंग्लिश बोलना ही कम्युनिकेशन स्किल्स की कैटेगरी में आता है, बट वो बहुत गलत स्टेटमेंट है, बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग है. कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब आप अपने वर्ड्स, अपने मेटा कम्युनिकेशन और अपनी बॉडी लैंग्वेज तीनों को कोऑर्डिनेशन में रख के एक अच्छे तरीके से अपने मैसेज को डिलीवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर proper communication. This is one reason why a person from one country finds it difficult to speak another language perfectly, as they are unable to distinguish the subtle sounds that are required in that language. यानी अगर आप किसी भी दूसरी, हम हिंदी स्पीकिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, if we are learning English as a second language, ESL, in that case we face the problems in understanding those subtle sounds which differentiate the words, or which actually enable the discriminative listening for any specific learner. So make sure that you understand the discriminative listening, and also make sure if you really are learning a language, especially the English language, make sure that you are actually focusing and concentrating on the nuances of the language also, the subtle sounds, the subtle specific concepts which are not generally taught to the students, and that's why they face problems in speaking English. Okay? Let's go ahead to the third type of listening, which is the comprehensive listening. Comprehensive understanding का ही एक दूसरा मतलब होता है. So comprehensive listening is the interpretation of the words and ideas. यहाँ पे आप words और ideas को interpret करने की कोशिश करते हैं. तो जब कोई बच्चा स्टार्टिंग में या जब आप एक, मान लीजिए आप कोई नया कोर्स कर रहे हैं और वहां पे टर्मिनोलॉजी जो है वो काफी कुछ हद तक टेक्निकल है, तो उन टेक्निकल वर्ड्स को समझने के लिए आपको जो कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक यूज करनी पड़ेगी या फिर आपको जो प्री लर्निंग यूज करनी पड़ेगी, दैट इज बेसिकली द कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग. यानी आप वर्ड्स को, टर्म्स को, टर्मिनोलॉजीज को आप अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द थॉट्स, आइडियाज एंड मैसेजेस. जो भी आप क्लास में जब आप कर रहे होते हैं, जब आप क्लास में कोई सब्जेक्ट समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग का एक एग्जांपल होता है, क्योंकि वहां पे आप चीजों को समझते हैं. अगर आप बायोलॉजी के लेक्चर में बैठे हैं, बायोलॉजी के, या फिर अगर आप मान लीजिए इंग्लिश के लेक्चर में बैठे हैं, तो वहां पे आप इंग्लिश ग्रामर के रूल्स पढ़ रहे हैं, तो आप उनको समझ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग.
दिस टाइप ऑफ लिसनिंग रिक्वायर्स दैट द लिसनर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी। इसके लिए लैंग्वेज और वोकैबुलरी होना बहुत जरूरी है। यानी अगर आप इंग्लिश में कोई लेक्चर सुन रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होनी चाहिए और वोकैबुलरी, क्योंकि अगर ट्यूटर या अगर जो आपका ट्रेनर है वो इस तरह की वोकैबुलरी यूज कर रहा है जो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस चीज को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग बिल्ड्स ऑन डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। बिल्ड्स का मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंशन तभी अच्छा हो सकता है जब आपको डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में अच्छा हाथ हो आपका, या आप उसको अच्छे से समझ पाते हो। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन के लिए सामने वाले व्यक्ति के केवल वर्ड्स को समझने से काम नहीं चलेगा, उस व्यक्ति के इंटेंशन को समझना बहुत जरूरी है, उस व्यक्ति के टेम्परामेंट को समझना बहुत जरूरी है। आखिर में वो जो सेंटेंसेस या वर्ड्स या जो भी स्टेटमेंट्स यूज कर रहा है वो क्यों यूज कर रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, कैसे उनको हमें यूज करना है, उन सब चीजों के लिए आपकी डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग होनी बहुत जरूरी है। और डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग अगर आपके अंदर है तभी आप कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग को यूटिलाइज कर पाएंगे। If you cannot understand the sound, you will not be able to interpret the language. Mismatches in vocabulary can disrupt the comprehension. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सामने वाले व्यक्ति के प्रति थोड़ी कम है, या आप सामने वाले व्यक्ति की साउंड या सामने वाले व्यक्ति के टेम्परामेंट को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसकी वोकैबुलरी के मतलब को समझ लेने से ही पूरा का पूरा काम नहीं चलेगा, कॉम्प्रिहेंशन अधूरा रह जाएगा। तो यहां पे ये बात आपको समझनी जरूरी है। Unlike discriminative listening, comprehensive listening requires language skills. Discriminative listening में language skills की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वहां पे आप केवल मेटा कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, बोलने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन का तरीका, साउंड को निकालने का तरीका, इंटोनेशन पैटर्न। लेकिन यहां पे आप कंटेंट पे ध्यान देंगे, और कंटेंट को समझने के लिए आपको लैंग्वेज स्किल यानी व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी आप सेंटेंसेस को समझ पाएंगे। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज यूजुअली डेवलप्ड इन अर्ली चाइल्डहुड। ये लिसनिंग हमारी अर्ली चाइल्डहुड से डेवलप हो जाती है, यानी बचपन से जब आप किसी एनवायरमेंट में होते हैं, जब अगर पेरेंट्स दोनों यानी मम्मी और पापा अगर किसी बच्चे की दोनों इंग्लिश बोलते हैं तो बच्चा इंग्लिश ही बोलेगा, अगर वो हिंदी बोलते हैं तो बच्चा हिंदी ही बोलेगा, अगर वो फ्रेंच बोलते हैं तो बच्चा फ्रेंच ही बोलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बच्चे को वो सटल न्यूएंसेस समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि वो डे टू डे कम्युनिकेशन में उस लैंग्वेज को यूज कर रहा है। People use comprehensive listening to understand what someone is saying using words. जब कोई वर्ड यूज कर रहा होता है तो उसको समझने के लिए, अगर आप कभी भी किसी व्यक्ति की बात को, उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग यूज कर रहे हैं। Several other types of listening build on comprehensive listening. For example, you need to use comprehensive listening to informational listening and learn something new. Informational listening को प्रैक्टिस करने के लिए, इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी तो आप इंफॉर्मेशन गेन कर पाएंगे। सामने वाला व्यक्ति आपसे अगर कुछ बातें बोल रहा है, उस बातों को, उन शब्दों को समझेंगे तभी तो आप इंफॉर्मेशन को नोट कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन को गेन कर पाएंगे। तो इंफॉर्मेशनल लिसनिंग बिल्ड्स अपॉन द कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। इन द सेम वे कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग बिल्ड्स अपॉन द डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। तो ये लिसनिंग आपस में कनेक्टेड होती है, राइट? नाउ some more points. At work and in your life, you will likely to use combination of comprehensive and discriminative listening to understand the message people are giving to you. अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं या एक अच्छे एक्टिव लिसनर बनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग मतलब मेटा कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज, एंड प्लस कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग मतलब वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, तभी आप डिस्क्रिमिनेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे या उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। For example, let's say your colleague briefs you on a project. You will need to use comprehension listening to analyze the words and understand the message. You will also use the comprehensive listening when you receive the feedback. जब आप फीडबैक रिसीव करते हैं उस समय भी आप कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग का यूज करते हैं, आप शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। साथ में आप डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग के ऊपर ही बिल्डअप होती है, आप नॉन वर्बल और आपका जो मेटा कम्युनिकेशन है उनके ऊपर भी पूरा ध्यान देते हैं, तभी आप मैसेज को सही तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है? Now, one more point. To comprehend the meaning requires first having a lexicon of words at the fingerprint and also all rules of grammar and syntax by which you can understand what others are saying. As we have already discussed this point, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ग्रामर के रूल्स, वोकैबुलरी, आपकी सिंटेक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फ्रेजेस, ये सब चीजों पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, तभी आप कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर बाइज्ड और सेलेक्टिव लिसनिंग। बाइज्ड और सेलेक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? बाइज्ड का मतलब होता है किसी स्पेशल व्यक्ति अथवा किसी स्पेसिफिक आइडिया के प्रति प्रॉपर इंक्लिनेशन होना। अगर आप किसी के प्रति झुकाव महसूस करते हैं तो आप उसके प्रति बाइज्ड होते हैं। ठीक है? तो सेलेक्टिव लिसनिंग का मतलब जो हम सुनना चाहते हैं, यानी हम जो चाहते हैं हम केवल वही सुनेंगे। ठीक है? तो बाइज्ड और सेलेक्टिव लिसनिंग नाम से ही क्लियर है कि यहां पे आप जो सुनना चाहेंगे केवल वही सुनेंगे, बाकी सारी इंफॉर्मेशन को आप डिस्कार्ड कर देते हैं।
Biased listening is also known as selective listening. Someone who uses biased listening will only listen for information that they specifically want to hear. For example, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी केवल बढ़ाई सुनना चाहते हैं, प्रेज सुनना चाहते हैं, और अगर कोई व्यक्ति आपको फीडबैक दे रहा है तो उसमें जो पॉजिटिव चीजें होंगी वो तो आपकी समझ में आएंगी, लेकिन जो नेगेटिव चीजें होंगी उनको आप डिस्कार्ड कर देंगे। तो ऐसी लिसनिंग को हम बोलते हैं बायस्ड या सेलेक्टिव लिसनिंग। डिस्कार्ड करने का मतलब कि आप उन पर ध्यान ही नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ऐसी लिसनिंग को ही हम बोलते हैं बच्चों सेलेक्टिव लिसनिंग, जहां पे हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें क्या सुनना है। This listening process can lead to the distortion of facts. That's because the person listening isn't fully in tune with the speaker wishes to communicate. यहां पे मान लीजिए मैं एज ए स्पीकर आपसे बताना चाहता हूं कि भाई आपकी वोकैबुलरी तो बहुत अच्छी है, बट आपका जो ग्रामर है वो उस पर अच्छी कमांड नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल अपने बारे में पॉजिटिव चीजें सुनना चाहते हैं। तो आपने जो सुना वो सिर्फ इतना सुना कि मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरे पार्ट को आपने इग्नोर कर दिया। अब यहां पे आप एक एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। रीजन बीइंग, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आप उसके साथ फुल्ली ट्यून्ड नहीं है। मैं आपको दोनों चीजें बताना चाह रहा हूं, लेकिन आपने केवल एक चीज सुनी। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई? यहां पे प्रॉब्लम हुई कि स्पीकर और रिसीवर दोनों ट्यून्ड नहीं है, एंड दैट्स व्हाई द कम्युनिकेशन कैन नॉट बी प्रॉपर एंड यू कैन नॉट बी अ एक्टिव लिसनर। गेटिंग माई पॉइंट? Biased listening happens when the person hears only what they want to hear, typically misinterpreting what other person says based on the stereotypes and the other biases they have. यहां पे biased listening इसको क्यों बोलते हैं कि आपके दिमाग में पहले से कुछ biases हैं या कुछ stereotypes हैं। stereotypes बोलते हैं कि जो चीजें हमेशा से चलती आ रही हैं विदाउट एनी लॉजिक हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं। अंधविश्वास की तरह ही उनको बोला जाता है सुपरस्टिशियस। इफ अ पर्सन इज सुपरस्टिशियस इट मींस ही बिलीव्स इन सुपरस्टिशंस, राइट। तो जब भी कभी आप ऐसी कुछ चीजों पे विश्वास रखते हैं या कोई भी किसी व्यक्ति के प्रति कोई राय बना लेते हैं, कोई एजम्पशन बना लेते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को आप समझने में भूल कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन कर जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपको लगता है कि कोई व्यक्ति हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करता है, लेकिन वो आपको क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है उसके पीछे की इंटेंशन को समझने की जगह आप हमेशा उससे दूर भागते हैं या आप हमेशा उससे कम्युनिकेशन करने से बचते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं। हमेशा याद रखो, क्रिटिसाइज अगर कोई कर रहा है तो वो व्यक्ति या तो आपका क्लोज होगा और वो हमेशा आपको इंप्रूव करना चाह रहा होगा, तो उसके पीछे के इंटेंशन को समझना आप भूल जाते हैं और वहीं पे मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है और सामने वाले व्यक्ति से आप एलियनेट हो जाते हैं, आप सामने वाले व्यक्ति को अपना दुश्मन मान लेते हैं। तो यहां पे बायस्ड और सिलेक्टिव लिसनिंग आप फॉलो कर रहे हैं, तो बायस्ड और सिलेक्टिव लिसनिंग बहुत खतरनाक होती है, ये आपको सामने वाले व्यक्ति से एलियनेट कर सकती है, ठीक है। Our initial judgment of a person or situation can really affect how we hear and interpret things. जब हम सामने वाले व्यक्ति को देख के कोई राय बना लेते हैं या कोई assumption क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके ऊपर काफी हद तक डिपेंड करता है हमारा लिसनिंग। अगर हमने गलत राय बना ली है तो हम सेलेक्टिव लिसनर हो जाएंगे, हम बायस्ड लिसनर हो जाएंगे और हम एक्टिव लिसनिंग को कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। The way someone looks, their tone of voice and the other factor can impact what we think they are going to say, and we preempt their actual speech with their expectation. आप बोलने से पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से ये रिप्रेजेंट कर देते हैं कि आप क्या बोलने वाले हैं, ठीक है ना। तो सामने वाला जो लिसनर है वो बेसिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के ही ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे इसको सुनना है कि नहीं सुनना। इसीलिए बोलने से पहले एज ए स्पीकर अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव और ओपन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनली देन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू विल अवॉइड बायस्ड और सेलेक्टिव लिसनिंग एंड प्रैक्टिस द एक्टिव लिसनिंग, अदरवाइज ही विल गेट इनटू द ट्रैप ऑफ बायस्ड लिसनिंग एंड योर मैसेज विल नॉट गो अक्रॉस। Okay, so make sure as a speaker also, if you really want to become if you really want to be heard or listened to, then you need to practice certain non-verbal communication skills, non-verbal cues, so that you can actually give a message that I am going to deliver a positive message. Okay, all right, next is sympathetic listening. सिंपैथी सबको पता है। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? जब हम सहानुभूति किसी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि ट्रांसलेशन है, बट सिंपैथी का मतलब होता है कि जब आप सामने वाले व्यक्ति के साथ सामने वाले व्यक्ति को दिखाते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है मैं भी वैसा ही महसूस कर रहा हूं, डोंट वरी, वो प्रॉब्लम मतलब आपकी और मेरी प्रॉब्लम एक ही है, ठीक है। सामने वाले व्यक्ति को आप आरामदायक या कंफर्टेबल महसूस कराते हैं, सामने वाले व्यक्ति को आप थोड़ा सा ईज कराते हैं, थोड़ा सा कंसोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिंपैथी। तो सिंपैथेटिक लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सिंपैथेटिक लिसनिंग इज ड्रिवन बाय इमोशंस। यहां पे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। जब आप कोई व्यक्ति दुखी है और उस व्यक्ति की बात को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे आप सिंपैथी शो करने की कोशिश कर रहे हैं।
Instead of focusing on the message spoken through the words, the listener focuses on the feelings and emotions of the speaker. Now, see, there are the nuances, the very little or subtle differences which you need to understand. Discriminative listening में हम व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दे रहे थे, राइट. कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में हम बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ हम वर्ड्स पे मेजर फोकस कर रहे थे कि वो कंटेंट क्या बोल रहा है. सिंपैथेटिक लिसनिंग में हम इमोशंस पे ध्यान दे रहे हैं कि बातों के पीछे का इमोशन क्या है, राइट. यहां पे बॉडी लैंग्वेज और वर्ड पे तो ध्यान देना ही देना है, बट आप साथ में इमोशंस के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं कि जो व्यक्ति बोल रहा है क्या वो खुश होके बोल रहा है, दुखी होके बोल रहा है, वो सब चीजें. इमोशंस आर मोर इंपॉर्टेंट इन सिंपैथेटिक. और अभी आप आगे देखेंगे एम्पैथेटिक में भी वही होता है, ठीक है. By using sympathetic listening, you can provide the support to the speaker's needs. स्पीकर, सामने वाला व्यक्ति हमेशा डायरेक्टली या ओपनली आपसे कभी भी हेल्प नहीं मांगेगा. उसकी बातों को समझ के ही आपको उसको हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए डिसाइड करना पड़ता है. और ऐसा जनरली कब होता है? जब आप अपने रिलेटिव्स में बात कर रहे होते हैं या फिर आप अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे होते हैं, उनको कोई हेल्प चाहिए होती है बट वो हेजिटेट करते हैं हेल्प मांगने में. तो उनकी बातों से समझना बहुत जरूरी है कि इनको हेल्प की रिक्वायरमेंट है. दैट इज कॉल्ड द सिंपैथेटिक लिसनिंग. You can understand how they are really feeling, not what they say they are feeling. जो वो कह रहे हैं कि वो फील कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो वैसा ही फील कर रहे हो. अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं आज बहुत खुश हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच में खुश हूं. हो सकता है कि मैं कुछ बात छुपा रहा हूं, राइट. वो आपने सुना है ना, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जो छिपा रहे हैं, राइट. तो वही चीज यहां पे वो सिंपैथेटिक लिसनिंग आ जाती है कि वो गम को समझना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस मुस्कुराहट के पीछे उस गम को आप समझें. दैट इज कॉल्ड द सिंपैथेटिक लिसनिंग, राइट. द स्पीकर विल फील heard and validated when you take the time to pay attention in this way. जब कोई व्यक्ति टूटा हुआ महसूस करता है या इमोशनली डिस्ट्रेस महसूस करता है, अगर आप उस व्यक्ति को ध्यान से सुनते हैं और उसके इमोशंस पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, उसको कंसोल करने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को या स्पीकर को बहुत रिलैक्स महसूस होता है. इमोशंस को बाहर निकालना, जो भी इमोशंस आपके लॉक्ड इन है, उन इमोशंस को बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक व्यक्ति के मेंटल वेलबींग के लिए. तो एज अ सिंपैथेटिक लिसनर you help a person in becoming mentally well. Okay, sympathetic listening is crucial if you want to build a deeper relationship with someone in your life. And let me tell you my dear students, अगर आप sympathetic listening follow करते हैं तो आप बहुत अच्छे relationship create कर सकते हैं, right. अगर आप व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को, मान लीजिए मैं हूं और मैं कोई बात कहना चाहता हूं और आप मुझे बहुत ध्यान से सुनते हैं और उस बात में कुछ इमोशंस इन्वॉल्व हैं और आप उन इमोशंस को भी समझ जाते हैं, then believe me, I will consider you my best pal, my best friend, right? Because you are the person who is listening to me at such a time when nobody listens to me. तो वो sympathetic listening बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सामने वाले व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए. For example, let's say you run into a work colleague at the grocery store. They seem upset, so you decide to listen to what they have to say. You also use sympathetic listening to feel how they are feeling. In doing this, you notice how frustrated they are about the lack of recognition they are getting at work. As a result, you can offer your support and sympathize with their situation. तो जब भी कभी, चाहे आप वर्क में हो, आप या फैमिली में हो, सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत आसानी से मिल जाएगा और आप उस व्यक्ति के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप सेटअप कर सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू द अच्छा, सिंपैथेटिक लिसनिंग में कुछ और पॉइंट्स हैं. सिंपैथेटिक लिसनिंग इज आवर वे ऑफ शोइंग दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट अ पर्सन इज सेइंग एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग देम. यानी सिंपैथेटिक लिसनिंग ये बताने का तरीका है सामने वाले व्यक्ति को कि भाई मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझता हूं, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं. ठीक है. इट शोज दैट वी केयर अबाउट देम. ये दिखाता है कि हम उनकी केयर करते हैं या हम उनका ध्यान रखते हैं. तो अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ सिंपैथेटिक कन्वर्सेशन करते हैं, they will consider you the best team leader, the best boss, right, the best leader. अगर आप अपने पार्टनर्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कर सकते हैं, then probably they will consider you the best family member. अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, they'll consider you the best friend. ठीक है. This kind of listening is common among close friends, partners and the family members. Of course, वहां पे तो sympathetic listening होती है. अगर किसी हस्बैंड के साथ उसकी वाइफ बात कर रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इमोशनली उसमें इन्वॉल्व ना हो.
It links very closely to the body language, so you are likely to see head tilt, sighing and nodding. यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व की जाती है और बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होती है एक्टिव सिंपैथेटिक लिसनिंग को प्रैक्टिस करते टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। आप किस तरह का आई कांटेक्ट रखते हैं, आप व्यक्ति के कितने क्लोज बैठते हैं, प्रॉक्सिमिक्स बहुत ध्यान रखता है, हैप्टिक्स किस तरीके से आप उनको टच करते हैं, वो सब चीजें आपके इस सिंपैथेटिक लिसनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, so the last point, the trouble with this type of listening is that it can be quite easily faked or staged. सामने वाला व्यक्ति इमोशंस को फेक कर सकता है, वो दिखा सकता है कि वो दुखी और हो सकता है कि वो अंदर से दुखी ना हो, राइट? लेकिन अगर आप एक बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं और आप कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं तो आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, बट नॉट विद एवरीबडी, राइट? तो ये फेक किया जा सकता है। Since we all know what to expect from people when they are being sympathetic, it's easy to replicate it. क्योंकि हमें पता होता है कि सामने वाले व्यक्ति को परसुएड किया जा सकता है अगर हम थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा करें। तो कुछ लोग इस चीज का गलत यूज भी उठाते हैं, बट मेक श्योर यू नेवर यूज दिस टाइप ऑफ टेंट्रम्स, यू नेवर थ्रो दिस टाइप ऑफ टेंट्रम्स वेयर यू आर एक्चुअली गेटिंग अनदर पर्सन टू यूज सिंपैथेटिक लिसनिंग। बिकॉज अगर सामने वाले व्यक्ति को ये पता लगता है कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पे केवल दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट पर्सन माइट फील हर्ट, राइट? सो मेक श्योर कि आप सिंपैथेटिक लिसनिंग और सिंपैथेटिक लिसनिंग को एक्टिवेट कराने के लिए जो भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो आप बहुत सोच समझ के यूज करें। नेक्स्ट इज नंबर 6, एम्पैथेटिक और थेरेप्यूटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक का मतलब जहां पे आप एम्पैथी यूज करते हैं, और थेरेप्यूटिक का मतलब बेसिकली जो थेरेपी के लिए यूज किए जाते हैं। जब कोई भी ऐसा पेशेंट होता है जो मेंटली थोड़ा सा ट्रबल्ड फील करता है, वहां पे थेरेपी यूज होती है, तो वहां पे इस तरह का कम्युनिकेशन यूज किया जाता है, इस तरह की लिसनिंग यूज की जाती है। दिस इज रियली सिमिलर टू सिंपैथेटिक लिसनिंग बट टेक्स थिंग्स टू अ न्यू लेवल। यहां पे सिंपैथी से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं आप, यानी इमोशनल लेवल पे अटैच होने के साथ साथ यू एक्चुअली गेट इन्वॉल्व विद द पर्सन इन फीलिंग हाउ दैट पर्सन इज फीलिंग। यानी सिंपैथी में तो केवल ये था कि अगर मान लीजिए मुझे बुरा महसूस हो रहा है, आपने बोला कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपको बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन एम्पैथी में आप मेरे साथ उसको बुरा महसूस करना शुरू कर देते हैं, एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन टू मेक माई कंडीशन अ लिटिल बिट बेटर, राइट? यहां पे एक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द एम्पैथी, पुटिंग yourself into the shoes of another person and then solving the problem is called the empathetic listening. Rather than looking on as an observer and feeling for the person, be it sadness, anger or joy, empathetic listener essentially experience the feeling for themselves. यानी आप केवल सामने वाले व्यक्ति के साथ सहानुभूति शो नहीं करते हैं, आप सामने वाली व्यक्ति की प्रॉब्लम को खुद की प्रॉब्लम मान लेते हैं और आप उसको सॉल्व करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। दिस इज अ साइन ऑफ रियली क्लोज फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप। ऐसा केवल बहुत क्लोज फ्रेंडशिप या क्लोज रिलेशनशिप में होता है, बट आजकल प्रोफेशनल सेटअप में भी दिस टाइप ऑफ लिसनिंग एंड दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज वेरी मच डिजायरेबल। टू फील समवन्स पेन और हैप्पीनेस इज टू लव देम एंड केयर देम डीपली। जब आप किसी व्यक्ति को बहुत ही गहराई से प्रेम करते हैं या उनकी बहुत ध्यान से केयर करते हैं, तभी आप इस तरह की लिसनिंग को यूज कर सकते हैं। It can be quite intense at times and can really weigh deeply on the listener if they are not careful. कभी कभी ये एज अ लिसनर आपके ऊपर हावी भी हो सकती है, क्योंकि इस दूसरे वाले व्यक्ति जिसको आप सुन रहे हैं उसको दुख को अगर आप अपना दुख मान लेंगे तो आप कभी कभी इतने ज्यादा दुखी हो जाएंगे कि despite it not being your problem, it will become your problem. तो यहां पे केयरफुल होना बहुत जरूरी है। यू शुड बी मेंटली स्टेबल, यू शुड बी यू कैन से स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड, ओनली देन यू शुड ट्राई टू बी एन एम्पैथेटिक लिसनर। और हालांकि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। ये एम्पैथेटिक लिसनिंग इज नॉट अ वेरी शैलो लिसनिंग, इट इज अ वेरी वेरी डीप लिसनिंग जिसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। दिस स्टाइल ऑफ लिसनिंग इज ऑल्सो नोन एज थेरेप्यूटिक लिसनिंग एंड फॉर ऑब्वियस रीजन। यहाँ पे थेरेपी का मतलब क्या होता है? जब आप सामने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस कराते हैं, राइट? जब आप सामने वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं थेरेपी के माध्यम से, इसीलिए इसको थेरेप्यूटिक लिसनिंग भी बोला जाता है। बाय पुटिंग आवरसेल्फ इन समवन एल्स शूज वी आर बेटर एबल टू हेल्प देम थ्रू देयर सिचुएशन। यानी इसका मेजर एजेंडा है, मेजर फोकस होता है कि भाई जब तक आप सामने वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम में खुद एंटर नहीं करोगे तब तक आप उसको सॉल्व नहीं करा सकते, ठीक है? This allows us to offer a version of therapy where we walk the individual through whatever they are experiencing as if we are experiencing it for ourselves. यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को उसी सिचुएशन के थ्रू गुजारने की कोशिश करें या उन्हीं स्टेप्स के थ्रू गुजारने की कोशिश करें जिससे कि हम सामने वाले व्यक्ति के दुख को खुद महसूस कर पाए और तब हम उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर पाए और सामने वाले व्यक्ति की हेल्प कर पाए।
With sympathetic listening, you try to understand someone's feeling to provide support, but you don't necessarily try to imagine what I would feel like to be in their position. सिंपैथेटिक और एम्पैथी में यही डिफरेंस है. सिंपैथेटिक में आप सामने वाले व्यक्ति को सपोर्ट कराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके दुख को आप अपना दुख नहीं मानते. जबकि एम्पैथेटिक लिसनिंग में आप सामने वाले व्यक्ति की परेशानी को खुद की परेशानी बना लेते हैं और तब आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. Here is an example. Let's say your superior just announced that this week's company outing is cancelled due to the budget cuts. By using empathetic listening, you can tell how much pressure your superior is feeling. अगर आपके superior ने आपकी छुट्टी को कैंसिल कर दिया, ठीक है, और आपके अंदर एक गुस्सा आना लाजमी है. आपको लगेगा कि यार मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी, मुझे घूमने जाना था, ये ब्ला 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 व्हाटएवर इट इज. लेकिन अगर आप एक एम्पैथेटिक लिसनर हैं तो आप समझ जाएंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा, तभी उसने आपकी छुट्टी को कैंसिल किया. किसी की छुट्टी को कैंसिल करना, किसी का बुरा बनना बहुत आसान नहीं होता. अगर उसे करना पड़ा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक सॉलिड रीजन रहा होगा, उसको कितने प्रेशर से गुजरना पड़ रहा होगा. दैट्स व्हाई ही डिक्लेयर्ड दिस थिंग. राइट. सो दैट इज कॉल्ड एम्पैथेटिक लिसनिंग. जब आप एम्पैथेटिक लिसनिंग फॉलो करते हैं ना, तो आपका कभी कोई दुश्मन नहीं होता. रीजन बीइंग, क्योंकि आप सामने वाले व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हैं, और दुश्मन केवल वही होता है जिसको आप नहीं समझ पाते. और जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हैं, उसी की तरह से समझने की कोशिश करते हैं, उसी के शूज में एंटर करके समझने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आप उससे कभी बुरा मानेंगे नहीं, और जब बुरा नहीं मानेंगे तो उसके साथ कोई एलिनेशन नहीं होगा. आपका वो दुश्मन कभी नहीं बन सकता. एवरीबडी विल बी योर फ्रेंड. But again, this is like I should say that this requires a lot of practice to become an empathic listener. But this is the best kind of listening. Okay? Right. So next is critical और evaluative listening. Critical और evaluative को मतलब जहां पे आप evaluation के नजरिए से सामने वाले व्यक्ति को सुन रहे हो. जैसे कि इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो इवेल्युएटिव लिसनर्स होते हैं. राइट. या फिर आप अगर किसी को जज करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी इवेंट को जज करने की कोशिश कर रहे हैं. Critical listening involves just that, being critical about what is being said, taking the important bits and making the judgment as needed. यानी जब कोई जज किसी इवेंट को जज कर रहे होते हैं तो वो दोनों पार्टीज को लिसन करते हैं. इवैल्यूएटिव लिसनिंग के माध्यम से वो कोशिश करते हैं ये केवल ये मार्कआउट करने की कौन सी चीजें अच्छी हैं इनमें और कौन सी चीजें बुरे हैं, और उनको वो कंपेयर करते हैं. राइट. दैट इज कॉल्ड द इवैल्यूएटिव लिसनिंग. Essentially, this type of listening is great in the business world. It helps listener get to the point quickly and keep things streamlined and efficient. Business environment में आप critical listening का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, critical analysis का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिससे कि आप एक better decision ले पाएं. By using critical listening as a skill, we can make decisions sooner as well as coming up with a solution to problems and analysis of the situation much quicker. क्रिटिकल लिसनिंग और इवैल्यूएटिव लिसनिंग से आप डिसीजन लेने में बहुत आसानी रहती है आपको. आप इजी डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि आप कंपैरिजन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं. कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस जो है आप वो क्लैरिफाई करने की वहां पे कोशिश करते हैं. इफ यू नीड टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, यू नीड टू यूज द क्रिटिकल लिसनिंग. जब आप एक पैसेज पढ़ रहे होते हैं, राइट, जब आप एक या फिर मान लीजिए आप किसी के डायलॉग को सुन रहे हैं, या फिर किसी व्यक्ति की स्पीच को सुन रहे हैं, वहां पे आप क्रिटिकल या फिर इवैल्यूएटिव लिसनिंग का यूज कर सकते हैं. राइट. जरूरी नहीं है क्रिटिकल और इवैल्यूएटिव दोनों एक ही हों, बट ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं कि आप वहां पे इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं. Using critical thinking while listening goes deeper than comprehensive listening. Comprehensive में आप केवल वर्ड्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, इंटेंशन को समझने की कोशिश कर रहे थे. क्रिटिकल में आप उसको इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सच भी है कि नहीं है. राइट. ये किस लेवल तक सच है, वो सब चीजें. And instead of taking the information as the face value, you can use critical listening to evaluate what's being said. कभी कभी जब आप सामने वाले व्यक्ति पे डायरेक्टली विश्वास कर लेते हैं तो आपको धोखा मिलता है. राइट. ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जहां पे भी आपको इस तरह की सिचुएशन लगे जहां पे थोड़ा सा लाइक लोग दे आर नॉट वर्थ कॉन्फिडेंस और वर्थ बिलीविंग, देन यू शुड ट्राई टू यूज द क्रिटिकल एंड इवैल्यूएटिव लिसनिंग. डोंट गो फॉर द वर्ड्स दे आर सेइंग. ओके. ट्राई टू इवैल्यूएट देम. ओके. क्रिटिकल लिसनिंग इज क्रूशियल व्हेन प्रॉब्लम सॉल्विंग एट वर्क. जब भी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट सामने आएगा तो क्रिटिकल लिसनिंग या इवैल्यूएटिव लिसनिंग हमेशा वहां पे काम आएगी, तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू वुड यूज दिस टाइप ऑफ लिसनिंग व्हेन ट्राइंग टू चूज हाउ टू हैंडल एन अनयूजुअल एंड कॉम्प्लेक्स क्लाइंट रिक्वेस्ट. कभी भी जब आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स क्लाइंट आ जाएगा और आपको कोई कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन लेना पड़ेगा, वहां पे क्रिटिकल लिसनिंग और इवैल्यूएटिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है.
You need to use this skill to analyze solutions offered by other people and decide if you agree or not. आपने 12th क्लास की, कोई आपसे बोल रहा है आईएएस की तैयारी कर लो, कोई आपसे बोल रहा है बीएससी कर लो, कोई बोल रहा है बीटेक कर लो, कोई बोल रहा है एमबीए कर लो. I mean, like whatever, there would be a lot of options, right? But again, they are providing a lot of solutions, but you will have to be critical about it. You will have to be evaluative about it. कि करना क्या है? Ultimately, you will have to take the decision, and then you would be using that evaluative or critical thinking. To do this, you don't just need to hear their words, you also need to look at the bigger picture and compare everything you know. यानी सामने वाला व्यक्ति तो आपको सॉल्यूशन देके चला जाएगा, सजेशन देके चला जाएगा. नाउ यू विल हैव टू सी द बिगर पिक्चर कि फ्यूचर में मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है अगर मैं बीएससी को चूज करता हूं, मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है अगर मैं बीटेक को चूज करता हूं, मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है अगर मैं इस सॉल्यूशन को चूज करता हूं. सो यू विल हैव टू जस्ट लुक एट द बिगर पिक्चर. Okay, critical can often have negative connotation, but in this context simply means cutting through what is being said and lift out of the most important and relevant part. Critical कभी कभी negative aspect में भी word देखा जाता है, but यहाँ पे critical का मतलब है कि आप चीजों को सही तरीके से समझ पा रहे हो उनकी डेप्थ में जाके. उनको केवल वर्ड्स का मीनिंग, कभी कभी वर्ड का मीनिंग जो होता है वो मिसलीडिंग होता है, उस वर्ड के पीछे की इंटेंट को समझना, उसको क्रिटिकली एनालाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. This is great skills to learn when it comes to business meetings, anything involving finances and any kind of high stress situation. कोई भी important crucial information finance से related, career से related या फिर ऐसी confidential information जो होती है, हमेशा उनको critically analyze और evaluate करना चाहिए. By taking on board the most crucial information from what someone says, we can learn to reach a conclusion much sooner than more easily. It means क्रिटिकली एग्जामिन करके या क्रिटिकली इवेल्युएट करके आप इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं और ऑब्वियसली आप एक अच्छे डिसीजन पे बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं. Critical also means to scrutinize what is being said and take something with a pinch of salt. Scrutinize का मतलब, scrutiny का मतलब आप चीजों को scrutinize करें कि वो किस हद तक सही हैं. It requires us to seek truth among the noise of opinion and exaggeration. सच्चाई क्या है उस चीज को फाइंड आउट करना. व्हाट्सएप पे आप बहुत सारे आपको ऐसे मैसेजेस या बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसका कोई भी वैलिडेशन नहीं होता, तो वहां पे क्रिटिकली एग्जामिन करना या वैल्यूएटिव लिसनिंग का यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. Critical listening is a key part of the critical thinking process. Critical thinking process में ही critical listening का part आता है. In a scenario where someone is trying to persuade a listener that they should adopt a technique, the listener is typically using critical thinking. Almost all sales scenario use critical listening. So जब भी कभी आपके घर पे एक सेल्समैन आता है और आपको बोलता है कि ये प्रोडक्ट ले लीजिए, ये इतना सस्ता है, इस पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है, न्यू ईयर ऑफर है, दिवाली ऑफर है, ईद ऑफर है, whatever offer it is, now you need to use the evaluative listening technique over there, whether the person is really telling you the truth or he is simply selling you some fake thing, right? So make sure वहां पे आप critical listening का यूज करें. नेक्स्ट नंबर 8 इज द अप्रिशिएटिव लिसनिंग. अप्रिशिएटिव लिसनिंग का मतलब जब आप किसी चीज को एंजॉयमेंट के लिए सुनते हैं, राइट, अप्रिशिएट करते हैं. Appreciative listening is exactly what the name implies, listening to enjoy the story, music, information that you hear. अगर आप ऑडियो बुक सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, कॉमेडी सुन रहे हैं, जोक सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, that's all is the appreciative listening. Appreciative listening is a type of listening behavior where the listener seeks certain information which they will appreciate, for example that which help meet his her need or goals. यानी जनरली जब आप कोई भी चीज स्पेसिफिकली एंजॉय करने के लिए सुनते हैं, वही आपका appreciative listening की कैटेगरी में आता है. One uses appreciative listening when listening to good music, poetry and maybe even the string of words of a great leader. स्पीच सुनते हैं कुछ लोग, न्यूज भी अप्रिशिएट करने के लिए सुनते हैं कुछ लोग. तो जब जो भी चीज आप एंजॉय करते हैं और एंजॉय करने के लिए सुनते हैं, वहां पे appreciative listening यूज की जाती है. And then is the number 9 relational और रैपो listening. relational और रैपो जैसे कि नाम से क्लियर है, जब आप रिलेशन बनाने के लिए या रैपो बनाने के लिए लिसनिंग का यूज करते हैं तो वहां पे आप रिलेशनल या रैपो लिसनिंग का प्रैक्टिस करते हैं. द लिसनिंग स्टाइल इज यूजुअली अनकॉन्शियस अप्रोच टू अटेंडिंग योर फ्रेंड्स पार्टनर्स मैसेज. जब भी कभी आप अपने दोस्त या अपने प्रिय मित्र के किसी भी कोई मित्र की आप इंफॉर्मेशन सुनने के लिए, उसको सुनने के लिए आप बैठते हैं, वहां पे आप हमेशा रिलेशनल या रैपो लिसनिंग यूज करते हैं जिससे कि आपके रिश्तों में कोई दरार ना आ जाए, रिश्ते बिगड़ ना जाए. A relational listening style means when we listen to a message, we tend to focus on what it really tells us about our conversation, friend, partner and their feeling. हम सामने वाले व्यक्ति की फीलिंग, उनके जो इमोशंस हैं उनको यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो रिलेशनल लिसनिंग या रैपो लिसनिंग बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो एक एम्पैथेटिक लिसनिंग की कैटेगरी में ही आती है. We engage in this type of listening when we are trying to focus on supporting another person for maintaining a relationship. यहाँ पे relationship maintain करना सबसे important होता है. सेल्स के केस में आजकल ये रैपो लिसनिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा यूज होती है. व्यक्ति आपको सुनने की कोशिश करेगा, उसके बाद आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करने की कोशिश करता है.
दिस इज द टाइप ऑफ लिसनिंग टू एंगेज विद आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड आवर रिलेटिव्स। जब आप अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ एंगेज करने की कोशिश करते हैं, वहां पे आप रिलेशनल या रेपो लिसनिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे इमोशनल एम्पैथेटिक लिसनिंग और रिलेशनल लिसनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बट एम्पैथेटिक लिसनिंग इज अ वाइडर टर्म। रिलेशनशिप और रेपो लिसनिंग केवल रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए होती है। एम्पैथेटिक लिसनिंग आपके प्रोफेशनल एनवायरमेंट में भी यूज हो सकती है। ठीक है। Relational or relationship listening is also important in areas such as negotiation and sales, where it is helpful if the other person likes you and trusts you. सामने वाले व्यक्ति से आप प्रोडक्ट केवल तभी खरीदेंगे जब आप उस पर ट्रस्ट करते हो, उस पर विश्वास करते हो। तो अगर सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत ध्यान से सुने रिलेशनल या फिर रेपो लिसनिंग का यूज करते हुए, तो आपको सबसे पहले आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करेगा एंड देन ही विल सेल यू द प्रोडक्ट. There are huge chances or more chances that his product will be sold out. Relational listening is listening so that you can empathize. Again, I told you, empathetic listening और relational listening दोनों एक ही टाइप के listening होते हैं. Most of us, even when we are really listening to others, are listening in order to compete. जब हम सामने वाले व्यक्ति को सुन रहे हैं लेकिन कॉम्पीट करने के लिए सुन रहे हैं, तो ऐसी लिसनिंग में हमारा रिलेशनल लिसनिंग नहीं होता, राइट? ऐसे जब हम रिलेशनल या रेपो लिसनिंग का यूज करते हैं, वहां पे कॉम्पीट करने का मतलब नहीं होता, सामने वाले व्यक्ति के साथ आर्ग्यू करने का मतलब नहीं होता, केवल सामने वाले व्यक्ति को सुनने और जिससे कि हम उसके साथ एक रिलेशनशिप बना सकें, उस चीज को फोकस में रखते हुए आप उसको सुनने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर लिसनिंग बट आर इनर डायलॉग इज थिंकिंग अबाउट अ बेटर स्टोरी और नॉट नेसेसरली अ बेटर स्टोरी बट आर ओन स्टोरी टू टेल एज सून एज द पर्सन वी आर लिसनिंग टू इज डन. जैसे ही सामने वाला व्यक्ति चुप हो मैं बोलूं, ऐसा सोच के साथ अगर आप सुनने की कोशिश करेंगे तो वो रिलेशनल लिसनिंग कभी भी नहीं हो सकती. We don't listen to understand, we listen so that we can bring better comments and thoughts to the conversation. Relational listening is actually an empathetic listening. जो हमने शुरुआत से बात की थी, वही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है. ठीक है? So I believe this is all, my dear students. I hope that you understood all the 9 types of listening. These are very important. So I hope that you understood each and every concept. If there is any issue or any doubt or any problem you want to ask me, make sure that you are commenting it on, or you can simply connect with me through WhatsApp and the Telegram channel. Once again, if you have not subscribed the channel, make sure that you subscribe and you hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications related to all the videos which I am posting. So do comment, subscribe and share with your friends so that they can also be benefited. Thank you so much for reaching to this point. Thank you so much for watching this session. See you all in the next session. Have a good day ahead.